A very good morning to our chief guest, Dr. Vasant Sathe sir, Center Director, UGC DAE Consortium for Scientific Research, Indore. Principal, Dr. Premlata Gupta madam. Our heads of various department of ISR, Dr. Pradeep Joshi sir, Dr. Jiten Tripathi sir, Dr. Ruchi Srivastav ma'am, Dr. Naveen Joshi sir, faculties, students, and our first-year students of UG and PG. It gives me immense pleasure to extend my greetings and heartiest welcome to our dignitaries, colleagues, and students to the induction program 2023 of Institute of Science and Research, IPS Academy. In this program, we take the opportunity to officially welcome our new students and to congratulate them for becoming a part of our IPS Academy, which they have chosen to begin their new career. As Lao Tzu quoted, the key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness. So today, you'll be acquainted about the various dimensions of our academy, be it infrastructure, facilities, and resources, so that you feel comfortable in the new environment, be sensitized towards your academic interest and activities, which may help you to strive for excellence. Such program inculcates in you the ethos and culture of the institution, promotes bonding, builds positive relationship between teachers and students, and expose them to a sense of larger purpose and become successful. So let's inaugurate this program with the blessings of Mother Saraswati. May I invite our chief guest, Dr. Vasant Sathe sir, Principal, Dr. Premlata Gupta madam, and heads of ISR, academic in charge, on the stage to start with the blessings, to invoke the blessings of Mother Saraswati and kindle the lamp of knowledge and wisdom. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता. Let's expel the darkness and bring positivity, prosperity, and happiness. May we outshine and prosper in our life. It's our privilege to welcome and honor the presence of our chief guest, Dr. Vasant Sathe, Center Director of UGC DAE CSR, Indore. May I request our principal ma'am to welcome our chief guest of today's program with a plant sapling. I would like to request our guest and ma'am to come on the stage, please. I would like all the students to give a big round of applause. Thank you. In Institute of Science and Research, IPS Academy, with a dynamism and persistence for seeking and adopting innovative methods of quality higher education, we have now become a recognized institute in national level. This year, ISR was ranked 77 by India Today and 47th rank by The Week. So a big round of applause for ISR. Thank you. ISR provides excellent teaching and learning and research facility. We have outstanding results with consistent merit positions in university. I now welcome our spearing head and pride of the institute, a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge, who made this possible, Principal of IPS Academy, Dr. Premlata Gupta ma'am, to please come on the dais and give the welcome address. Honorable Dr. Vasant Sathe, Center Director, IUCDAE Consortium,
heads of various departments, faculty members, and dear students, a very good morning, and I extend a warm welcome to all newcomer students of BSc and MSc. IPS Academy, Indore Professional Studies Academy, is a premier institute of Central India. It is largest educational hub premises, playing a major role to develop Indore as Central India's most preferable education center. It is sprawled in an area of 60-acre lush green terrain with 3 campuses, one at Saver and one at Jhabua, with 16 colleges under one roof in core campus, with 83 courses. More than 500 teaching faculties are here, with more than 10,000 students are studying in core campus. The various institutes housed in separate aesthetically designed buildings have state-of-art infrastructure with well-designed laboratories, libraries, and skilled qualified faculties. IPS Academy is NEC accredited institute. Engineering and Management Institute of IPS Academy have autonomous status. We, as Razia Madam told you, कि IPS Academy stand with reputed position among best science colleges by the week Hansa. Recently, we got 48th position among top 100 colleges by the week Hansa, and India Today at 73 position, and we are the most emerging science college in country at 9th position. IPS Academy, it has been our endeavor to provide education to students that leads to multifaceted development of their innate talent, intellectual and physical capabilities, overall personality imbibe into them with cultural and national spirit, thus making them responsible global citizens and good human beings. For this, we have NCC unit for girls and NSS, Wellness Center, state-of-art learning department with advanced ICT facilities. I also welcome you all to showcase your talent in our own Radio IPSA channel. Apart from this, we have mess, canteen, bus facilities. Institute of Science and Research, in which you are studying, is the best institute of basic sciences in MP. ISR is running 13 UG and PG courses. Here, more than 30 faculties are PhDs, NET qualified. We have published more than 300 research papers in national and international reputed journals. 7 government-funded MAPCOS UGC-funded research projects have been completed. 2 research projects are running, one of MAPCOS and other sub-research project of rupees 40 lakh is running presently. The key pillars that will help Institute of Science to achieve greater heights are best results and placements. Continuous and rigorous training and development regime for hones the communication skills, leadership, entrepreneurial skills of student, which lead unmatched placement in leading institute and industries. New education policy have been implemented with the aim
to all-round development of student as it includes vocational subjects, internship, field projects which run other than basic curriculum which lead to holistic development of students. IPS Academy will prove to be the best platform to showcase your hidden talent and horizon for a bright future. Today, we not only come together to celebrate induction program of our institute, but also to acknowledge the remarkable achievement of Indian scientists, particularly at ISRO, Indian Space Research Organization. I wish to motivate our students to consider a future in field of science a path filled with endless possibilities and potential to change the world. Let me begin by sharing with you a recent and truly inspiring achievement by the scientists at ISRO. Just last month, as you all aware of it, that ISRO successfully launched Chandrayaan-3, a mission of profound significance. The successful launch of Chandrayaan-3 reminds us that all the exceptional talent, dedication, innovation that exist within our country's scientific community, they proved with all this quality we can reach to stars and behind the stars. To our student, I must say, the world of science is a universe of discovery waiting for you to explore. It is a world where you can contribute to solving some of the most pressing challenges facing our planet, whether it be in the field of climate change, healthcare, artificial intelligence, space exploration, etc. It is a world where your ideas, your curiosity, your passion can lead to groundbreaking discoveries that can change the course of our history. As you consider your future path, I urge you to reflect on incredible achievement of ISRO and the potential that lies within each of you. Choose science, choose curiosity, choose pursuit of knowledge, choose make a positive world. I would like to share recent Indian scientist achievement. Chandrayaan-3 India became first nation to land on South Pole of Moon. Aditya L1 mission for studying sun. India saved 50,000 crore by blending ethanol in petrol and diesel. In Omkareshwar floating solar panel in 2,000 hectare of Narmada river. I hope you might be aware of all this. As per the report of Stanford University, of the 2% impressive scientists of the world, 3,700 are Indian scientists. This is a very proud thing. Upcoming targets are India has set a target of achieving defense manufacturing worth rupees 1,75,000 crore by 2025, which would include export of rupees 35,000 crore. India's target for zero carbon emission by 2070. Recently, in G20 leaders launches biofuel, alliance that will lead to a greater scientific opportunity in biofuel studies. India will increase its recyclable energy production to 500 gigawatt. This is
really a matter of pride. Lastly, thank you all for your attention. May you find courage and curiosity to embark on your own scientific journey. Once again, hearty welcome and best wishes for your future endeavors. Thank you very much. Thank you so much for your informative and motivating words. Dr. Vasant Sathe, a scientist at heart, is currently serving as UGC at UGC DAE Consortium for Scientific Research, Indore. Sir completed his PhD from UGC DAE CSR Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore in 1999. Dr. Sathe research interests include the field of experimental condensed matter physics, leading two laboratories, Raman Spectroscopy and Pulse Laser Deposition Laboratory. And he specializes in Raman scattering, X-ray absorption spectroscopy, X-ray, neutron diffraction, epitaxial thin films, etc. Sir has over 280 publications in international journals. Sir has been receiver of many awards and honors, namely Science Excellence Award in 2023, MRSI Medal 2021, Boycast Fellowship of DST India, ICTP Fellowship for working at Synchrotron, Italy. Sir received the Best Thesis Presentation Award in DAE Symposium on Solid State Physics in 1998. He was selected by IOP editors for novelty, significance, and potential impact on future research for his research paper and is currently guiding 2 PhD scholars. So thank you so much, sir, for accepting this invitation. Dr. Sathe also invented a protocol to trace femtometer scale displacements in single crystals and epitaxial films using polarized Raman spectroscopy. So with great pleasure, we welcome you, sir. I would like to request you to come on the dais and please motivate us with your grandeur. Thank you so much. First of all, thank you very much for inviting me for this special day. I know this is a special day for all the students who are coming to the college. Some of them are coming to the college after leaving the foundations of schools, and some of them coming to the MSc courses of the sciences. So once again, let me first thank the principal, Professor Gupta, and Tripathi ji, Dipti ma'am, and others for inviting me and giving me this chance to interact with you. If you are comfortable in Hindi, I can talk to you in Hindi. If you are comfortable in English, I can talk to you in English also. So let us mix the language and try to interact heart and heart. It should be an interaction session. It should not be just one-way session. So nowadays in news and everywhere, see, generally science people, even in my time, people who come to science were supposed to be, अरे इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो साइंस में चले गए, है ना, ये भावना रहती है. लेकिन ये भावना आने नहीं देना है हमको, ठीक है. क्यों नहीं आने देना है? बिकॉज इफ़ यू हैव सीन जस्ट नाउ, मोदी जी ने क्या बोला है कि हमको 2047 तक कंट्री को डेवलप नेशन बनाना है. कैसे बनेंगे हम डेवलप नेशन? कोई बता सकता है? खाली सॉफ्टवेयर से तो नहीं बन पाएंगे हम. The only and only way is we should be leader in science and technology, not only in technology. So engineering is one theme which deals with technology, isn't it? Innovation of technology. But innovation of new technology requires a good research in science. आप कोई भी थीम ले लो, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, जो आपके हाथ में अभी लैपटॉप है या मोबाइल है या समथिंग है, जो भी है, वो किसने इन्वेंट किया है? अगर मैं बोलूँगा वो इन्वेंट किया है जिसने सेमीकंडक्टर इन्वेंट किया है. ओके, सेमीकंडक्टर 1960s में इन्वेंट हुआ है. उस समय जब वो इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने बोला अरे यार बेकार है, इसका क्या उपयोग है. ओके, पता चल गया कि बैंड गैप है बीच में, देयर इज़ नो ट्रांजिशन हैपनिंग दिस एंड दैट. So nobody gave any
thought about it that this is such a great discovery that it is going to change the entire future of the humanity. Okay? So once that semiconductor is doped and a diode is created and a transistor is created, people have come to know that, oh, such a wonderful thing. Earlier, to make a transistor or a diode, there were walls. हम लोग तो उस पीढ़ी के हैं जिसने हम पहले भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के पहले भी देख चुके और बाद में भी देख चुके। हमारे घर में जो रेडियो था उसमें वॉल लगे रहते थे, उसको हम वैक्यूम वॉल्स बोलते थे। तो उसमें क्या रहता था, एक इधर एक मेटल का ये रहेगा, बीच में एक वो रहेगा। तो क्योंकि हमको करना क्या है, स्विच चाहिए ना, डायोड इज नथिंग बट ए स्विच। ओके, कि एक डायरेक्शन में तो फ्लो हो, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होना चाहिए। टू मेक दैट दिस मच वॉल जो था, दैट वॉज डिजाइंड एंड सच सो मेनी वॉल्स वेर देयर इन ए रेडियो। एंड इतना बड़ा रेडियो का डब्बा रहता था जो कि आज मोबाइल में हमारे हार्डली कुछ मिलीमीटर में शायद रेडियो आ जाता है इसमें। तो हाँ, तो ये सारा कमाल हुआ है किसके कारण? गुड साइंटिफिक डिस्कवरी के कारण। एंड वी टेक प्राइड कि अगर हम लोग वैक्सीन नहीं बनाते, वैक्सीन किसने बनाई? साइंटिस्ट ने बनाई, इंजीनियर्स ने तो नहीं बनाई। ओके, सो बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकली जो साइंटिस्ट थे, अगर वो ये चैलेंज नहीं लेते और हम वैक्सीन नहीं बनाते तो क्या होता? कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर तो फाइज़र से ही लेना पड़ती है हमको। और अगर आपने सोशल मीडिया और ये सब कुछ देखा होगा तो फाइज़र की जो नालायकी है, नालायकी शब्द ही उसके लिए उचित है, वो हम सबको पता है कि वो कैसे हमको डोमिनेट करते थे। अमेरिका की जो फाइज़र कंपनी हो, वो हमको बोलते कि आप तो $500-500 में एक लो डोज, और क्या करते हम लोग, मरता क्या ना करता, हमको लेना पड़ता। देन दे वुड हैव डिक्टेटेड द टर्म्स। मोदी जी could say no to Pfizer because we had indigenously developed vaccine in our country. Of course, for science, everything, it is required that we require a lot of dedication and passion. And as such, जरूरी नहीं है कि आप BSc MSc करके साइंस की फील्ड में ही जाओ, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मैंने भी अभी देखा है कि साइंस, अंडरस्टैंडिंग साइंस बाय हार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड साइंस बाय हार्ट, बेसिक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपका अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा होगा कि यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑल्सो। दैट इज माई दिस थिंग। बट यू नीड योर अंडरस्टैंडिंग टू बी द बेस्ट इन ए पर्टिकुलर वेरी स्मॉल टॉपिक और समथिंग, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट बाय हार्ट। ओके, जैसे हमारे घर में रूटीनली डिवाइसेस रहती हैं। ओके, तो रूटीनली जो डिवाइसेस रहती हैं वो क्या रहती है? आप सब लोग आरो करके पीते होंगे उसको, है ना, आरो वाला पानी, आरो वाला पानी। आरो में क्या रहता है? हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? सोचा है आपने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? A sort of atmospheric pressure or a natural pressure. This is a pressure where जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, from there the particle goes to the place where density is less. So this is a osmotic pressure, है ना। आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया है क्या कभी? हम लोग के टाइम पे, हम जब बच्चे थे तो जैसे भोपाल जाना हो तो बहुत जल्दी चले जाते थे, आधा घंटा पहले बस आने, क्योंकि बाद में तो भीड़ हो जाती थी। तो आपने देखा होगा कि बस में सीटें कैसे भरती है। अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि एज ए साइंटिस्ट यू शुड बी एबल टू थिंक ईच एंड एवरीथिंग। बस में सीटें कैसे भरती है? सबसे पहले तो अगर कोई फैमिली होगी तो जो मोस्ट कंफर्टेबल सीट होगी शायद ड्राइवर के पीछे की, आगे की, क्योंकि दचके कम लगते हैं तो वहाँ बैठेगा। लेकिन जो दूसरा आएगा वो उसके पास में नहीं बैठेगा, एक सीट छोड़ के बैठेगा। पहले सारी सिंगल सीटें भर जाएंगी अगर सिंगल इंडिविजुअल है तो, है ना। उसके बाद फिर फिलिंग चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ अ नेचुरल फोर्स कि हम डेंसिटी अवॉइड कर रहे हैं। ओके, सो जनरली पार्टिकल्स ट्रैवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए लाइटर मीडियम, है ना। ये दिस इज ऑस्मोटिक फोर्स। रिवर्स ऑस्मोसिस ने क्या हुआ, हमको उसमें प्रेशर लगाना पड़ा कि जो हमारा हार्ड वाटर है उसकी तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमको पंप करके मेम्ब्रेन बीच में लगा के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। मतलब वो जो डेंसर साइड है उससे वो लाइटर साइड में जा रहा है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन के इस पार आप पानी आ रहा है वो क्या है? लाइटर है वो, क्योंकि उसमें ये सारे जितने हार्डनेस है, जो कि मिनरल्स भी हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, बट मोस्टली मिनरल्स भी रहते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, सम ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, बट यू आर गोइंग फ्रॉम ए
डेंसर टू द लाइटर साइड इन सम सेंस कि उसको पानी को पुश करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, पानी कौन सा निकालना है, हार्ड वाला पानी बाहर निकालना है, तो उल्टी तरफ से प्रेशर लगा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो if you are in a science stream, there are definitely going to be lot of opportunities which are opening up, because if you see, our generation has picked the, जिसको हम बोलते कि दोहन, okay, picked that we are utilizing each and everything to its maximum nowadays, okay, because technology is very high, things are very fast nowadays। आपको ब्रिज भी बनाना है, हम पहले तो 5-5 साल लग जाते थे, अभी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो विद इन ए ईयर वो ब्रिज तैयार हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर एग्जॉस्टिंग वेरी फास्ट, एंड दैट इज क्रिएटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो ए साइंस स्ट्रीम has a lot, because after 10 or 20 years everybody has to face this particular problem, that our environment is getting degraded, okay, and where our this Raman spectroscopy is very highly used nowadays, which is invented 90 years back or more than 90 years back by our own great C.V. Raman or something like that, that how this degradation in environment can be detected first of all, because to find a remedy, first of all, we require to know what is the cause, what are the things, what are the elements which are degrading all this particular environment and something. So how will you go about that particular part? So to a science stream, we must understand each and everything by core of the heart, and then try to find out what are the things which are there, and then how to stop them particular part. कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटी से हम कर सकते हैं, दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे पानी है, पानी धीरे धीरे आप कितना नर्मदा से पानी लाओगे, कितना करोगे, अगर इंदौर इन्फाइनेटली बढ़ता ही चला जाएगा तो टाइम अभी आने वाला है कि हमको पानी को रीयूज़ करना पड़ेगा, तभी हम सबकी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। अब रीयूज़ करने में फिर से क्या होगा, सबसे पहले उसमें रिसर्च जाएगा, कुछ ना कुछ साइंस जाएगा, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर कि वो वायबल है या नहीं है, सबके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, उसकी कॉस्ट कैसे कम करना है, इसमें भी साइंस लगेगा और इसमें भी टेक्नोलॉजी लगेगी। सो साइंस के लिए तो अच्छा टाइम आ ही रहा है और आता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि साइंस की स्ट्रीम जो है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। रादर आप देखोगे तो एनवायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक साइंस जो नई स्ट्रीम है आजकल, क्योंकि जितने अपराध हो रहे हैं अगर उनको कोर्ट में स्टे करना है तो आपको नाउअडेज यू रिक्वायर साइंटिफिक एविडेंसेस, एंड दैट कैन बी वेरी इजीली अचीव्ड, ओके, क्योंकि दिन ब दिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक फोर्जरी का एग्जांपल मैं हमेशा दिखाता हूँ, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में इसलिए आती क्योंकि मैं साइंस डे पे बहुत लेक्चर्स देता हूँ, वेयर आई डिस्क्राइब जनरली हाउ रामन हैज़ इन्वेंटेड द रामन इफेक्ट एंड व्हाट आर इट्स यूसेजेस एंड एवरीथिंग। बीइंग माई सेल्फ इज ए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, सो आई यूज़ दिस पार्ट। तो उसमें जैसे फॉरेंसिक साइंस हम लोग नहीं करते, हम तो हार्डकोर कंडेंस मैटर फिजिक्स वाले हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट ए फोर्जरी हैज़ हैपन्ड। मीन्स सपोज किसी से आपने एक कोरे पेपर के ऊपर साइन ले लिया और आपने एक लेज़र प्रिंटर में उसमें डाल दिया और ऊपर कुछ भी प्रिंट कर दिया। आजकल तो बहुत इजी है कि एग्जैक्ट जहाँ साइन है उसके नीचे यूर सिंसियरली के नीचे आ जाएगा, या बहुत ये लिखते हैं हिंदी में धन्यवाद के नीचे, वहाँ पर वो साइन आ जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रिंट आउट बाद में लिया है या सिग्नेचर पहले हुई है या सिग्नेचर बाद में हुई है। अगर सिग्नेचर बाद में हुई है तो उसको हम फोर्जरी नहीं मानेंगे, जबकि सिग्नेचर अगर पहले ही ले लिए, ऊपर कुछ भी कंटेंट है जो कि उसके मन माफिक नहीं है, हाउ विल यू प्रूव दिस। आप आर्ग्यूमेंट करते रहो कोर्ट में, वो बोलेगा नहीं इसने तो साइन किया है। बट रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको पता कर सकते हैं, ये मैंने कुछ पढ़ा है उसमें और बड़े इंटरेस्टिंगली बड़े ईजी वे में पता कर सकते हैं क्योंकि जो पेन की इंक रहती है उसका जो रामन स्पेक्ट्रा आता है तो उसके सिग्नेचर, हाँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हम लोग उसके बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर खूब सारी पीक्स आ रही हैं एक पर्टिकुलर जगह में। अगर हमने उस पेन की इंक को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके रामन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि टोनर, क्योंकि बाकी जगह तो सिर्फ टोनर है, टोनर की इंक के सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर एक स्पेशल मैप बनाते हैं कि टोनर की इंक जो है वो पेन की इंक के ऊपर भी है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिग्नेचर बाद में किया होगा तो टोनर की इंक जो है, क्योंकि बहुत फाइन टोनर के पार्टिकल्स रहते हैं जो कि हर जगह रहते हैं पेपर पे, हमको आँख से दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं वो,
और वो हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से इजीली निकाल सकते हैं कि इंक ऊपर है या टोनर की इंक ऊपर है। अगर टोनर की इंक ऊपर है तो ये डेफिनेट साइंटिफिक प्रूफ हो गया है कि जो प्रिंट आउट है वो सिग्नेचर के बाद में लिया गया है। सो दिस आर समथिंग थिंग्स विच रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, ओके, कि किसने पहले सोचा होगा उसको कि अरे मैं ऐसा करके देखता हूँ। जैसे हमने भी एक एग्जाम्पल प्रयोग करके देखा था, हालांकि उसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए क्योंकि हमारे बाकी के जो रिसर्च इंटरेस्ट है हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे आपको पता होगा मूंगफली का तेल, तो मूंगफली का तेल काफ़ी कॉस्टली रहता है, क्योंकि मूंगफली का ये भाव अगर मैं पूछूं तो मुझे लगता नहीं कि आजकल के स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन अगर उसका रेट तुम देखोगे तो जो मूंगफली का तेल है उसके रेट से थोड़ा सा ही कम रहता है। अब जनरल क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेरी आना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम में है उसको जनरल क्वेश्चन या क्वेरी आना चाहिए कि 1 किलो मूंगफली से मैं कितना तेल निकाल सकता हूँ। जनरली कंसेंसस है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 ग्राम्स निकाल सकते हो। तो फिर मूंगफली के रेट से कम वो कितने गुना ज़्यादा होना चाहिए तेल, कम से कम 2 गुना तो होना चाहिए। ठीक है, बात की खली उसने कहीं बेची, ये किया वो किया, लेकिन 2 गुना कभी भी नहीं होता है। आप आज भी, ये आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि मार्केट में देखना कि मूंगफली क्या भाव है और मूंगफली का तेल क्या भाव है, ठीक है। जनरली ये बिलीफ है इंडिया में कि जो पाम ऑयल रहता है, जो कि इंडोनेशिया मलेशिया उधर की तरफ से आता है, हमारे यहाँ पाम कम है, ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पाम ऑयल है ये बहुत सस्ता पड़ता है और इसीलिए इसके मिक्सचर्स रहते हैं उसमें कुछ इसमें। तो हमने भी किया कि चलो एक काम करते हैं, एक पाम ऑयल लेते हैं और उस पर रामन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर लेते हैं। और मैं रामन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरी फील्ड है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा सोचता हूँ हमेशा, ओके। तो हमने पाम ऑयल का लिया और मूंगफली तेल का लिया, दोनों में हमें दिख गया कि यार ये वाली पीक इसमें ज़्यादा है, ये वाली पीक इसमें कम है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में डिफरेंस है। और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप एक सैंपल लगा दोगे और हो जाएगा। आपको इसके कम से कम 100 सैंपल लेना पड़ेगा, रिपीटेबिलिटी है या नहीं है, क्या है कैसा है। तो इट्स ए लेबोरियस वर्क कि आपको एटलीस्ट 100 सैंपल पाम ऑयल के लेना पड़ेंगे, 100 सैंपल आपको मूंगफली के तेल के लेना पड़ेंगे, और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि हाँ इन सब में ये वाली जो पीक है वो मूंगफली के तेल में डोमिनेंट है, वाइल एज दिस अदर पीक इज डोमिनेंट इन पाम ऑयल। अगर मिक्सचर होगा तो क्या होगा, उन दोनों के रेशो में चेंज आएगा, ओके। एंड देन वी कैन राइट ए एल्गोरिदम, सिंपल एल्गोरिदम to find out how much is the percentage of palm oil which is in different brands or something like that, okay. Similarly एक और एग्जांपल मैं देता हूँ जो हमने किया था कि जनरली क्रोसिन की गोली या इस टाइप की गोलियाँ रहती है, उसमें मिलीग्राम लिखा रहता है कि 800 mg 400 mg समथिंग लाइक दैट। डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको 400 mg लेना है। तो आजकल तो ये कम होता है, पहले ऐसा होता था कि 800 mg की गोली है तो हम बोलते थे आधा करके ले लो, ओके। तो अगर आधा करके लिया, सो इफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परफेक्ट इन दैट, देन वेदर दैट इज करेक्ट देन, क्योंकि हाउ डू यू नो दैट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज होमोजीनियस, ओके। इट मे नॉट बी होमोजीनियस एवरीवेयर, and we did that experiment actually, okay. It was a very laborious experiment. It took us 4 to 5 days to do that particularly part in this that, and we found that it is not homogeneous. On a very standard company drugs only it is very homogeneous, otherwise it is not homogeneous. So if you take half a goli, sometimes you are taking 500 mg, while as on the other day you are taking 300 mg. So the drug will not affect you that properly, okay. So there are many such challenges, that is what I am telling you. But this culture or of thinking on each and everything, even smallest things, should evolve in a science to succeed in a science. There are opportunities, no doubt about it, which can be utilized by science faculties and science faculty students. Only thing is your thinking should be everywhere, wherever you are thinking. And unfortunately, I am not blaming this generation, but unfortunately, this mobile is killing this particular part. You don't have free time to think anything unless you think yourself. मोबाइल से क्या होता है, कुछ भी बोर हो रहा है, मोबाइल टक 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 टक, कुछ भी नहीं, और यूट्यूब निकाल के देख लो कैसे होने वाला है।
मेरी और मेरे डॉटर के बीच में कभी बार ये कन्फ्रंटेशन होता रहता है, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपका पार्ट क्या है, मैं उसको भी समझता हूँ कि उसकी थिंकिंग क्या है। वो हमेशा बोलती है, अरे पापा आप हमेशा बस मेरे को ये मोबाइल के ऊपर से डांटते ही रहते हो। मैंने कहा डांटने की बात नहीं है, आप 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना नहीं है। अगर आप खाली समय नहीं बैठोगे तो चिंतन कब करोगे? और अनलेस यू थिंक योर सेल्फ ऑन एनी प्रॉब्लम और एनी थिंग, you can't learn it by heart. This is true. I myself is facing this particular part. Earlier when mobile was not there, अभी तो इतना WhatsApp, अरे ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, दिमाग में सारा कचरा भर जाता है. Then you don't have that power, brain power कि you really crack something nicely. तो मैंने भी अपना मोबाइल टाइम इसीलिए लिमिट कर दिया कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखूंगा. लोग मुझे बोलते हैं, यार तुम 9 बजे बाद मोबाइल ही नहीं देखते. मैंने कहा हाँ नहीं देखता हूँ मैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू थिंक समथिंग. अगर आप खाली नहीं बैठोगे, सोचोगे नहीं कि अरे यार आज ऐसा डेटा आया था, उसमें क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, यू डोंट, अनलेस यू कनेक्ट द डॉट्स और यू कनेक्ट द पॉइंट्स, वो रंगोली तो पूरी होगी नहीं ना कभी भी. और वो पॉइंट्स तो कनेक्ट तो आपको ही करना है और आपको ही सोचना है. तो साइंस स्टूडेंट के लिए इन जनरल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट सम फ्री टाइम, ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके ऊपर सोचो. एक दिन में नहीं आएगा वो, कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं. अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. ये जो जिज्ञासा है, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी, ओनली विल टेक यू टू सक्सेस. अदरवाइज time pass though it's easy nowadays. This thing is nobody gets bored. Of course they can get bored because of the loneliness which mobile provides. But otherwise TV है, मोबाइल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं. टाइम पास करने में कोई इतना इशू नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू सक्सीड, what is required is your original thinking, and science demands that. Okay, so you have to develop an habit of your original thinking. Many times you will be wrong, but you should try to improve your thinking and then correct yourself again and again, day in, day out, so that you can reach to some particular level. अब मैं मेरी बात बताता हूँ कि मैंने भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर से, जब पहली बार MSc करके मैं UGC DAE CSR में ऐसे रिसर्च स्कॉलर गया, तो मैं वहाँ पर यहाँ पर 11+5 पढ़ा हुआ था, जबकि हमारे बैच के सारे लोग TIFR, कोई बैंगलोर से, कोई कहीं से कहीं से कहीं से. आई रियली स्ट्रगल्ड फॉर फर्स्ट 3 years बिकॉज आई वॉज लैकिंग इन ईच एंड एवरीथिंग. और हमारे टीचर हमको इतना डांटते थे और इतना ह्यूमिलिएट करते थे कि मन में एक तीव्र इच्छा उठी कि नहीं, वन डे आई विल शो हिम कि नो, आई एम ऑल्सो समथिंग एंड आई विल नॉट गिव इट अप. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंदौर में हैं. एनीवे नाउअडेज मैडम हैज ऑलरेडी सेड दैट यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री. So you have this particular advantage, but there should be in core something that yes, we can also do it, and you can do it. Nobody is there. Even in ISRO, if you see, most of the people, the scientists, are again, they are not from very top institutes or something like that. Most of the scientists, they are from a remote engineering college or remote scientific institutes and things like that till now. But they are doing wonders, okay? Because of their dedication and their original thinking. Okay? जैसे अब चंद्रयान 3 की बात हुई, तो जो रशिया का था, आपको पता होगा, रशिया का जो मिशन था वो विदिन 8 days पहुंच गया था वहाँ. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका रॉकेट पावरफुल था. इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड देन टेकिंग स्मॉल एनर्जी टू लिफ्ट द ऑर्बिट रेडियस, ओके, इट्स ए इलिप्टिकल ऑर्बिट. सो व्हाट यू डू इज you just fire a rocket or something. It's like a Diwali rocket only. It's nothing. Only the fuel is different. Okay, the fuel is liquid, that is cryogenic, and that is why it is called cryogenic engine. Cryogenic engine means what? Liquid nitrogen, liquid helium, and this type of a thing. Liquid oxygen. And when this mixes together, क्योंकि फिर से हम ये थिंकिंग करना चाहिए कि ऐसा क्या होता है कि लिक्विड में इतना ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, सॉलिड में नहीं मिलता है. ओके, सो यू नो दैट अगर आपने लेटेंट हीट ऑफ ये पढ़ा होगा और सब कुछ पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब लिक्विड ट्रांसफॉर्म होता है गैस में सडनली, वो भी ओके, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है. एंड दैट इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द रॉकेट अप वेरी फास्ट. ओके, तो ये जो स्मॉल रॉकेट्स है जिसको मोटर्स हम बोलते हैं, उससे इंडिया ने क्या किया, अपना ऑर्बिट बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते गया, और फाइनली जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्लोज टू मून आ गया वो, देन एक और मोटर फायर किया सो दैट इट गोज इन टू द ऑर्बिट ऑफ द मून.
फर्स्ट. जबकि रशिया ने क्या किया, उनका रॉकेट इतना पावरफुल था कि उसको डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में प्लेस कर दिए. हाँ, इट हैज़ बीन प्लेस्ड डायरेक्टली इन द ऑर्बिट ऑफ द मून. Okay, and they had a very ambitious plan that, okay, once it is in the orbit of the moon, now we will take down and land it properly over there. Again एक क्वेश्चन आना चाहिए बीइंग साइंटिस्ट कि यार ऐसा क्या बड़ी बात है, मैं पैराशूट लगा देता तो क्या आराम से उतर नहीं जाता वो? बहुत ऑब्वियस सी बात है. यहाँ लोग कितना पैराशूट से, आजकल तो आपने व्हाट्सअप में वीडियो देखे होंगे कैसे कैसे करतब कर लेते हैं और बड़े आराम से लोग उतर जाते हैं. कितनी बड़े बड़े चीज़ों पे उतर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर उतर जाते हैं. तो ठीक है, चंद्रमा पे भी स्मूथ वो नहीं है सरफेस, तो शायद प्लेन लाइक लैंडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो पैराशूट क्यों नहीं लगा दिया? है कोई किसी के पास जवाब इसका? हाँ बताओ. वेरी गुड. कि चंद्रमा के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन. तो वो क्या करेगा छतरी या पैराशूट? वेदर इट विल सस्टेन नथिंग, because there is no lift which is coming because of atmospheric gases or something like that. Okay, so this type of questions or curiosity should be there in the minds of a science student, that why this type of approach has come down. Okay, कि उसके फिर से अपना मोटर ऑन करके, आपने देखा होगा कि मोटर ऑन करके बैलेंसिंग ऑफ फोर्स इज डन, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ द मोटर. Velocity was made 0 around 50 meter or 100 meter from the surface, and then slowly that motor force has been reduced, and so that the velocity against that is the it says started and touching the Chandra or our moon. So these are some things which is required. Many of the problems of life can be solved by original thinking. And India requires them a lot, because as the population is growing, problems are also growing. And for all problem solvings, we require original thinking. Okay? So therefore, never get demotivated that you are not in engineering, so आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं. अगर आपका original thinking बहुत अच्छा होगा, if you have a good original thinking and good capabilities in yourself, and if you try to learn skill sets, because see, science is a difficult stream, it's not a simple stream. Understanding science, particularly physics, chemistry, mathematics, and biology also, is not that easy. It's a tough thing. If you want to learn it by heart, each and everything, it's a tough thing. You require a lot of efforts to learn everything properly. But if you do that, I'm very sure that you will definitely succeed in your life. So there are many jamaiya and everything, but I hope I have not bored you much. Good wishes to all of you. I hope you will succeed in your life, and thank you very much. Thank you, sir, for your amazing scientific, interesting information and a beautiful takeaway, science by heart. Thank you, sir, for motivating our students for original thinking and be curious. Thank you so much. Our nation's pride, the Indian Space Research Organization, Space Agency of India, has made news worldwide recently for its successful Chandrayaan-3 mission by soft landing on Moon on 23rd August 2023, a historic time and moment for us. Since then, it has been constantly giving us breakthrough information with its Vikram, the lander, rover, Pragyan, and propulsion module. From a humble beginning today, we have made an excellent mark in the space. With its objective of playing meaningful role in space flight instead of competing with the economically advanced nations as envisioned by its founder, Dr. Vikram Sarabhai, in 1962. Today, we have moved further steps ahead proudly, standing with the objective in mind. No one in the world can do it like we do, said Dr. S. Somanath, current ISRO chairman, in making the low-cost Chandrayaan-3 with a shoestring budget of only 6.15 billion rupees. To remember and honor the contributions of ISRO, we are presenting a performance entitled Cycle Se Chand Tak, ISRO. This performance will be performed by Rishika, Ritika, Archie,
Poonam, Daphne, Saloni, Shivani, and Adya. टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं, एक टूर के हैं। Thank you for the lovely performance. It was a wonderful performance. Time now for our next act. A history was made at 6:04 p.m. on 23 August 2023, the point where lander Vikram of Chandrayaan-3 made soft landing about 600 km from the south pole of the moon, which was named Shiv Shakti Point. Prime Minister Modi said that Shakti arises the capability of actual humanitarian ambitions, and Shiv Shakti is a tribute and homage to the diligence, inspiration, and empowerment of women scientists. In other words, it means the potential of scientific progress that can be harnessed to elevate humanity's welfare. This serves as a powerful affirmation of the increasing representation of women in the field of science and technology. Not only this, it promotes women empowerment by promoting women's sense of self-worth, the ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others. Our next act represents these thoughts, and we hope it will be a source of inspiration for future generations. This act will be presented to you by Anushka, Prajaksha, Aditya, Vivek, Mukul, Samyak, Pankaj, Rishikesh, Piyush, Khushi, Vaibhav, Pankaj, Krishna Vallabh, Ashutosh, and Anansha. So a big round of applause for our participants. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा।
चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। Well, students and audience, I hope you have enjoyed the lovely performance, a beautiful amalgam of science and art. After the beautiful performances, let us introduce our 5 departments of ISR. The head department of physics, Dr. Jitendra Tripathi sir, to kindly say a few words to our encouraging students. Respected Sate sir, principal ma'am, मेरे colleague heads, professors and my dear students. इतने अच्छे 2 प्रोग्राम्स हमने देखे, इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आप स्पीच सुनना चाहेंगे, है ना? तो स्पीच देने की बजाय मैं सोचता हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं हम डिपार्टमेंट के बारे में, है ना? एज आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, तो थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली जो फिजिक्स है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है ना? थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो जो 2 पैर होते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी में, वैसे फिजिक्स के भी 2 पैर होते हैं। एक होता है थ्योरी और एक होता है एक्सपेरिमेंट। जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइक इन फिजिक्स ऑल्सो, पहले हम कुछ थ्योरी डेवलप करते हैं, फिर उसका एक्सपेरिमेंटल वर्जन क्रिएट करते हैं और वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उससे डेवलपमेंट होता है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है, हम इसी मोटो को फॉलो करते हैं। तो उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे यहाँ पर ढेर सारे, आप जो भी थ्योरी आप पढ़कर आए हो अभी तक 11th-12th में, इवन आप बायो साइंस के स्टूडेंट्स होगे तब भी आपने फिजिक्स ज़रूर पढ़ी होगी। तो वो थ्योरी के सारा एक्सपेरिमेंटल वर्जन, मोस्ट ऑफ देम हमने यहाँ बना कर रखा हुआ है। तो हमारे बनाए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम उनको डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे लगभग जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं वो सारे प्राइज़ विनिंग हैं। वो टॉप 3, टॉप 5 में ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हरदम रहते हैं जो भी हम डिज़ाइन करते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास जो हमारे डिपार्टमेंट में जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, दिस इज़ फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एक 14 इंच हमारे पास हम एक स्काई गेजिंग क्लब रन करते हैं। स्काई गेजिंग क्लब में हमारे पास एक 14 इंच टेलीस्कोप है। अभी आप चंद्रयान वगैरह के बारे में सुन रहे हैं, तो हम टेलीस्कोप से चंद्रयान तो नहीं देख सकते, लेकिन हम बाकी चीज़ें बहुत सारे स्काई गेजिंग एक्टिविटी करते हैं। अभी मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको सैटर्न भी दिखेगा, आपको जुपिटर दिखेगा, जितने भी मतलब ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमको फैसिनेट करते हैं वो सारे हम देखते हैं। तो उसके लिए इवेंट करेंगे हम मैं आपको बोलता हूँ आप सब आइए और वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। दैट इवेंट इज़ ओपन फॉर ऑल। आप इफ़ यू वांट आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ला सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को उन इवेंट्स में ला सकते हैं। ऐसे ढेर सारे इवेंट्स हम करते हैं। तो फिज़िक्स में जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स की लैब है, आपको वो पूरे मतलब हिंदुस्तान में मुश्किल से 2-4 जगह ही मिलेगी, वो भी शायद रनिंग कंडीशन पे ना हो, आई डोंट थिंक सो। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। आप हमारे जो फुट मार्क्स हैं, आप IPS अकेडमी के अंदर घूमोगे तो आपको सब जगह फिजिक्स के फुट मार्क्स मिलेंगे। आप इस बिल्डिंग के बाहर जाओगे तो वहाँ पे फोको पेंडुलम लगा हुआ है, 80 फीट टॉल फोको पेंडुलम लगा हुआ है। दैट इज़ आर्स, हमारे ISR का पेंडुलम है जो हमने लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज़ वर्किंग ऑल्सो। उसका आप जहाँ कहीं भी जाओगे आपको पूरा जो साइंस है वो हर जगह दिखेगा। जैसे सर कह रहे थे कि साइंस के बिना तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है ना। जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करती है, आप साइंस जो है वो उसको डेवलप करता है। यदि साइंस में डेवलपमेंट नहीं हो तो इंजीनियर्स भी उसको एप्लीकेशन पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप नोबेल प्राइज़ उठा के देखेंगे फिजिक्स के, आप देखिए 2007 से 6 से जब से आप उठा के देखना चाहें, उनके जो भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसके एप्लीकेशंस आप देखेंगे, चाहे वो GMR हो, चाहे वो क्यूबिट हो, जिस किसी पे भी नोबेल प्राइज़ मिला है वो सारे एप्लीकेशंस आपको इंजीनियरिंग में मिलेंगे। मतलब दुनिया जो है वो सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है ना। यदि सब लोग कोडिंग करने लगेंगे तो उस कोडिंग से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस होंगी वो कौन बनाएगा। तो यदि वो चीज़ें ही नहीं बनेंगी तो वो कोडर्स या वो IT प्रोफेशनल्स भी क्या करेंगे। तो इसलिए आप सब साइंस को बहुत बढ़िया से पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए। आप रेगुलर कॉलेज आइए और आपने बहुत अच्छा कॉलेज चुना है और इसकी बहुत सारी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यशस्येते षड्गुणा सतस्य नासाध्यमति वर्तते। मतलब विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता, कार्यशीलता, ये 6 चीज़ें जिसके पास है, आप ध्यान दें इसमें विज्ञान आया है ना। विज्ञान के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं आया। ये बहुत पुराना श्लोक है ना, उपनिषद से लिया गया है, तब भी कहते थे। तो ये जो 6 चीज़ें जिनके पास है उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु हैव दीज 6 वर्च्यूज। विच वन? नॉलेज, लॉजिक, साइंस, मेमोरी, readiness and ability to function. Okay, so do like this. All the best. आप सबका स्वागत है. Thank you. Thank you, sir. I would like to invite Dr. Ruchi Srivastav ma'am from Department of Chemistry to please address the gathering. A very good afternoon to respected principal ma'am, respected guests, heads of all departments, faculty members, and our future chemists, biotechnologists, mathematicians, physicists, microbiologists. On behalf of Department of Chemistry, with glad hands, I greet you all. Department of Chemistry, established in 2003, it's running 2 PG courses, MSc Chemistry and MSc Pharmaceutical Chemistry. Also, we have chemistry as one of the major subjects with different streams, with mass group and bio group. And for your information, I must say that in teaching staff, we are total 8 members, including principal ma'am, Dr. Premlata Gupta ma'am, she is professor of chemistry, me, Dr. Ruchi Srivastava, Dr. Pratibha Sharma ma'am, Dr. Raina Jadhav ma'am, Dr. Amit Singh Thakur sir, Dr. Vijayan Solanki, Dr. Shraddha Base.
and accompanied with our non-teaching staff, Mr. Vijay Patidar, Mr. Mahindra Vishkarma, and Mr. Sumit Katyar. Well, it's a time to start something new and to trust the magic of new beginning. So in this induction ceremony, I would like to share few of our students' achievement, which definitely inspire you. Well, Rajesh Shukla sir is also there. He will tell you more about our placement, but I would like to focus on MSc Chemistry placements. Our ample efforts for a student's placement is notable, and which leads to official 52 placements in last 2 years, with an average package of 4 lakhs and highest package of 9 lakhs. I'm happy to share that this year, thank you. I'm happy to say that, share that this year we are having 27 students in MSc Chemistry and Pharmaceutical Chemistry, and all of them gradually get placed in reputed institution, all of them. In Mylan, Cipla, Nestle, Byju's, Symbiotic, etc. Placements are our biggest efforts. Yes, it is our biggest arm, I should say. So we actually committed for you. If someone says that we will give you placement from chemistry, yes, we will. Actually, we will. Why I'm telling about more placement, because everyone wants job. हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, but everyone wants job. And yes, with MSc Chemistry, you will see that you will get jobs. If we see around, we see industries, and there in industries, we required chemist and analyst. And for that analyst and chemist, we required MSc Chemistry and Pharmaceutical Chemistry. And that's we have. So all these things become possible due to the resources available in Department of Chemistry. In this series, we have a great state-of-art laboratories with the sophisticated instruments, HPLC, especially HPLC. We should mention this HPLC over here because this is not available in any college of Indore. And all the students of science graduates and from other streams may do training on that also. This is a feather in our cap. Towards the academic side, we have one more crown. We have 5 gold medalists and 52 merit positions in MSc Chemistry and Pharmaceutical Chemistry. Also, I would like to mention over here that our students excel in research also. In last 2 years, 16 students has give their presentation in international and national conferences. 2 of our students has published papers in journals, which is good, and I think they are excelling in research. And there are many awards at national and zone level. Well, we have a long list, and we have most of the things in our Department of Chemistry, like sir says, that we have value-added courses, we have good infrastructure, and all those things. You just come to department and take benefit of that. In nutshell, IPS Academy will surely provide you a right decision, and I've just end up my speech with this quote. खोल दोई पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी आसमान बाकी है. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. I would now like to invite our head, Department of Biotechnology, Dr. Naveen Joshi, sir, to address the students. Honorable Principal Madam, our guest, Dr. Sethi, my dear students, I will take you 2 years back, or I say 3 years back, what the world is facing. That you all are locked in your houses. Everyone is locked in the houses. Everyone is afraid of the next day life. So there is a question always that what we are going to do in the last years. So everyone wants a one answer that I want to survive. Survival is the first and the important thing for the human beings, because Darwin has already quoted that survival of the fittest is always there.
The one who is the fit, that will defect to the others also and will come against. So, in last 3 years, everyone come to know about the power of the biological sciences, specifically biotechnology and the microbiology. If biotechnology and microbiologists had not worked for day and night, today maybe we will not gathered over here. It will be difficult for us to gather like this. So they have developed a vaccine within a span of a year that was used for you peoples to survive in this world. Otherwise, corona may be a big problem for all of you. So I will start with that. So from this, a simple example, everyone knows the power of the biology. So you choose a right department to be work with the biotechnology and the microbiology. To fulfill this, our department will provide you the different facilities that are available with us. More specifically, everyone has heard about the PCR, that are testing done for the COVID positive, but nobody knows that it's a very simple process to know. So we are having a molecular biology lab where you will learn how to sequence, how to amplify the DNA, how to isolate the DNA, and once you understand these things, you will get a command on the molecular biological work, and you will be able to do any manipulations in the human beings or in the plant or in the microbial, because human beings is a topic of discussions that is not allowed by the certain rules. So you can go for the manipulations in the plants, in the animals, or in the bacteria and the viruses and the fungus. Along with that, a big part is coming that by naturotherapy. In naturotherapy, we are taking the plants as a novel sources. We are having a plant tissue culture lab that will flourish you to understand the naturotherapy, how the plants are developed, how the secondary metabolites are used in the therapy, how they are developed secondary metabolites, how we are developing the secondary metabolites. Along with that, we are having a research labs, we are having a different instrument. Those will make you the perfect biotechnologist and the microbiologist that you are going to be. Along with that, I want to quote that we are having merits. One gold medal, that is for the BSc Life Sciences student has got a merit in the BSc positions. We have got merit positions in university, in MSc also. Along with that, we are not nurturing only for the merits, we are nurturing for the overall development of the students. Our students are also participating in the sports. They have got gold medal in the archeries, in the swimming competitions on the university and the state levels. They are getting a good command on that sports. So we believe in overall development of the students. So along with we are making to you a good biotechnologist, we are also making you a good citizen too. We try to make you a good citizen. Placement, as madam has already told, all these companies are also open for the students of the biotechnology and microbiology. And Shukla sir is also here. He will tell you more about that. And one thing I want to quote, if you, as Sir Sethi sir says, if you have zeal, अगर आपके पास में एक zeal है, एक क्वेश्चन है, जो कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अटेंड करी है अभी तक, फर्स्ट ईयर में भी आए हैं, उनको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ, यू शुड हैव अ वन क्वेश्चन, एस सर से. तो अगर आपके पास में एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा है, इफ़ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑलवेज, यू विल बी अ गुड थिंकर and you will get solutions to the all the problems. So आपके पास एक प्रश्न होना चाहिए जिससे कि आप अपनी थिंकिंग कर सके और उसको क्या करें, लेके आ सके. ठीक है, तो I just want to say in the last that you have made a good choice to choose the IPS Academy for the nurturing of your career. We will provide you all the facility for the overall development of your career. Thank you. Thank you so much, sir. Let's move ahead to our future. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The placement cell plays a crucial role in materializing your dreams. The placement cell operates around the year to facilitate contacts between companies and graduates. So I invite Director of Central Placement Cell of IPS Academy, Mr. Rajiv Shukla, sir, to motivate our new students. Good morning, friends. Good morning, friends. Okay, better. है ना, भाषणों से नींद आती है ना. So,
मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं ये भी बताने नहीं आया हूँ कि आप लोगों ने सही कॉलेज चुना है। Only thing that I've come here to tell you is, इतने अच्छे टीचर्स यदि ना होते तो आज जो आप लोग प्लेसमेंट्स में कीर्तिमान स्थापित करते हो वो शायद कभी ना हो पाता। So thanks to all the gurus seated here. Sciences, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी किया था जब एमबीए के प्रेम में पढ़ा उससे पहले, लेकिन साइंस ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी, टू बी इंक्विजिटिव। ये जो सर ने कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा मौजूद होना चाहिए, लोग तो शायद आज तक भी मुझसे परेशान रहते हैं, है ना, इतने प्रश्न पूछने वाला। एंड दैट इंक्विजिटिवनेस ब्रिंग्स आउट योर ट्रू पोटेंशियल। आप यदि, और साइंस की मेरे ख्याल से शुरुआत ही उस प्रश्नवाचक चिन्ह से हुई थी, अपने से प्रश्न पूछने की कला, वही शायद साइंस की जन्मदाता है। पहली बार किसी ऋग्वेद के ऋषि ने अपने आसमान की तरफ देख के पूछा होगा कि ओहो ये क्या है। एंड दैट इज़ हाउ all those books that you read today are born. My work is a little difficult. Little difficult उतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी difficult in the case कि मुझे आप लोगों को ये समझाना पड़ता है कि थ्योरी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में या और किसी जगह पर। What I work incessantly is application of your, जैसे सर ने डिफरेंस समझाया था इस इंजीनियरिंग और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बीच में। फिज़िक्स जन्मदाता है उन सारे इक्विपमेंट्स, उन सारे चीज़ों का जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं आज। बट देन मैं उससे एक स्टेप फर्दर इस चीज़ में जाता हूँ कि आप लोगों के लिए वो ग्राउंड तैयार कर सकूँ जहाँ आप लोग उन्हीं चीज़ों को इंडस्ट्री में जाकर अप्लाई कर सको। टीचर्स आपको उस ग्राउंड के लिए, मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉलेजेस, बिकॉज मेरे को आज तक इंडस्ट्री से एक भी शिकायत नहीं मिली कि मैंने ऐसे स्टूडेंट भेजे हों, है ना, जिनको कुछ ढंग से नहीं आता। ढंग से नहीं आता मतलब मेरे ख्याल से मैम से मैंने, है ना, काफ़ी पहले शेयर किया था कि इंटरव्यू लेने वाला बोला था कि इन लोगों ने काम, इन्होंने प्रॉपरली लैब्स में जाके काम किया है। बिकॉज आजकल वो कॉलेजेस की परंपरा चल पड़ी है जिसमें स्टूडेंट्स लैब में आते हैं, नहीं आते हैं, नंबर मिल जाते हैं। बट देन थैंक यू टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने भली थोड़ी मारा पीटी से, लेकिन वो परंपरा को कायम रखा है। एंड मैं आई वुड सीरियसली आस्क यू ऑल कि अपनी पढ़ाई पर वाकई ध्यान देना, बिकॉज तुम लोग सब ब्रांड एम्बेसडर्स हो कॉलेज के। जितना तुम लोग इंडस्ट्री, देखो नाम तो ढेर सारे मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट डे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ प्लेसमेंट्स। या तो आप पहले दिन से प्लेसेबल हो या आप आखिरी दिन भी प्लेसेबल नहीं बनते। उसमें पहली चीज़ होती है कि खुद से प्रश्न करो, क्यों कोई एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है और उसका एप्लीकेशन कहाँ है। आजकल तो हाथ में एक इंफॉर्मेशन डिवाइस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है इंडस्ट्री में, क्यों वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, क्यों वो किताब में जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है वो क्यों पढ़ा जा रहा है, कहीं तो उसका एप्लीकेशन होगा। एंड स्लोली यू विल गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन इंडस्ट्री वर्क्स अराउंड
अ कॉलेज। इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ऐसे ही उठ के आ जाती है। इंडस्ट्री नोज़ कि कैसे स्टूडेंट, और मैं 3 बैचेस के नाम लूँगा। एमएससी, जो कि थोड़े थोड़े रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, देन आपकी केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दूसरी बैच जो जिसका मैं नाम लूँगा विच इज़ फार्मेसी, थोड़ी सी एप्लीकेशन में, थोड़ा सा एप्लीकेशन ज़्यादा है, थ्योरी हल्की सी कम है। तीसरी है केमिकल इंजीनियरिंग। बट आज तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है, जितनी मारकाट एमएससी वालों को लेने के लिए मचती है, उतनी उन 2 कोर्सेस में नहीं। उनको मालूम है कि हाँ वो मिल ही जाएगा। इंडस्ट्री वालों में लिटरली बंटवारे हो जाते हैं कि है ना, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं तो इतने मैं ले जाऊंगा और उतने तुम ले जाना। सो यू हैव बिन, है ना, मेरी इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट करते हुए मुझे खुशी ये है कि तुमने नाम रोशन किया है अपने कॉलेजेस का, तुम्हारे सीनियर्स ने, सुपर सीनियर्स ने। दे आर ऑल वर्किंग, कुछ तो उनमें से एंटरप्रेन्योर्स हैं, ब्यूटीफुल एंटरप्रेन्योर्स, अपनी कंपनीज रन करते हैं, बीट ऑन केमिकल साइड, कुछ तो नॉन केमिकल साइड पर भी कंपनीज रन करते हैं। सो ऑल लॉरेल्स फॉर यू। फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, यस, तुम्हारे लिए दोनों रास्ते खुले हैं। तुम चाहो तो प्लेसमेंट्स लेकर अपनी अलग राह चुन सकते हो। मेरे लिए खुशी की भी बात है और थोड़ी सी दुख की भी बात कि जितनी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट देती है मुझे बीएससी का, उतने तो मुझे स्टूडेंट्स भी नहीं मिल पाते। कारण बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि वो पहले पीजी कर लें और इसके बाद इंडस्ट्री ज्वाइन करें। बट वॉट एवर पाथ यू चूज़, चाहे प्लेसमेंट में आप आना चाहो, यू वुड बी मोस्ट वेलकम बाय द इंडस्ट्री। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में बीएससी की आज भी इतनी डिमांड है कि उतनी पूर्ति तो पूरी, मेरे ख्याल से सारे कॉलेजेस मिलके नहीं कर पाते होंगे। और वो बिकॉज ऑन द ग्राउंड लेवल जो शॉप फ्लोर पे जो प्रोडक्शन का जो काम है, उसके लिए बीएससी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एमएससी हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वाले एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, बट बीएससीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, जो कि मैं तो कई लोग यदि उस रास्ते जाना चाहेंगे तो वी वुड बी ओपन टू दैट। सेकंड, जो बीएससी आगे पीजी की तरफ भी बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली 3 साल ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि आप इंडस्ट्री के लिए जिस दिन भी आप जॉब करने जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंडस्ट्री ग्राह्य, इंडस्ट्री के द्वारा एक्सेप्टेबल बना सके। देयर आर 2 और 3 ज़्यादा चीज़ों से आज के दिन में ना, पहला दिन थोड़ा खुशी का रहता है तो है ना, ज़्यादा वो नहीं करूँगा। बट फर्स्ट इज़ ट्राई टू डेवलप, दिस इज़ फॉर एमएससी एज वेल एज फॉर बीएससी। तुम कल को किसी भी कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई कोर्स लोगे या इंडस्ट्री में जाओगे, फर्स्ट थिंग दैट यू विल एनकाउंटर इज़ द नीड फॉर कम्युनिकेशन। हम जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यदि मैं आज जो चीज़ें एक्सप्लेन करने आया हूँ यदि मैं बोल ही ना पाता तो ज्ञान इतने साल का व्यर्थ ही होता। सेम इज़ विथ यू। कहीं भी जाओगे, चाहे आगे के अच्छे कॉलेज में या इंडस्ट्री में, जो ज्ञान तुमने 3 साल या 2 साल पढ़ा है उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ट्राई एंड डेवलप कम्युनिकेशन as much as you can. We will help you out. We'll try to build up the way as we would like. But then अपनी तरफ से भी कम्युनिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। आजकल तो ऐप्स का ज़माना है, ढेर सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो कम्युनिकेशन में, वोकैबुलरी बिल्डिंग में तुम सबकी सहायता कर सकते हैं। सेकंड, मेरे ख्याल से ऋषियों के काल से वो चला आ रहा है कि जो किताब में लिखा हुआ है बस वो पढ़ लिया, एहसान किया और एग्ज़ाम दिया है। ट्राई टू डेवलप, जो सर ने कहा था, इंक्विजिटिवनेस, नए से नए ज्ञान की क्या डेवलपमेंट्स हैं इस फील्ड में, क्या क्या चीज़ें
रिसर्च पेपर्स ढेर सारे पढ़ने की कोशिश किया करो। नए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इंडस्ट्री में, किस चीज़ पे आज ज़्यादा काम हो रहा है, कौन सी फील्ड्स में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तुम्हें कम्युनिकेट क्या करना है, उसके लिए भी तो हमें नए ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे ना। बुक्स विल इक्विप यू with all the information which has been collected all through these years. लेकिन आज से 5 साल के बाद क्या होने वाला है वो ट्रेंड्स भी आप लोगों को स्टडी करना पड़ेंगे. That will help you in your corporate journey. And third is develop an overall personality. मैं शायद आज सफ़ेद पजामे कुर्ते में भी आता तो भी चलता ना, बट देन ओकेजन के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना, ड्रेस करना और अपनी ऑडियंस के हिसाब से. मेरे पहला जो आमना सामना आप लोगों से होता है वो अपनी कपड़ों के थ्रू होता है, राइट? मेरे पहले अपीयरेंस के थ्रू. सो और कभी देखना, व्हेन यू वियर योर बेस्ट ऑफ योर ड्रेस, यू वियर अ टाई, एक ब्लेज़र ऊपर से डाल लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं बढ़ जाता है ना? फॉर गर्ल्स, एनी फॉर्मल ड्रेस दैट यू वियर विच गिव्स यू अ गुड फीलिंग, डजंट योर कॉन्फिडेंस गेट बूस्टेड? सो ट्राई टू वर्क ऑन योर ग्रूमिंग एज वेल. कोई बताए तुमको कि ये शर्ट तुमको या ये ड्रेस तुमको नहीं पहननी चाहिए, उसके बजाय आईना कभी झूठ नहीं बोलता. आईने से ही पूछ लिया करो कि आज है ना, एम आई लुकिंग दैट प्रोफेशनल, कि मैं क्लास में भी बैठूं तो मेरा दिमाग उसी दिशा में चले. ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सेकंड इज योर एडिशनल नॉलेजेस, एंड थर्ड इज योर ग्रूमिंग. ग्रूमिंग मीन्स ओवरऑल पर्सनालिटी का ग्रूमिंग. ये 3 चीज़ें यदि तुमने कर लिया, तुम वर्ल्ड में कहीं भी रहोगे, है ना, यू विल मेक अस प्राउड. सो वर्क ऑन दैट. And thank you so much for listening. May I request our principal to kindly felicitate our guest with a memento as token of gratitude. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and for your kind presence. Thank you, ma'am. Life will give you much more than just a degree. Get ready for all the adventure. Dear students, you have entered a lively, challenging, diverse, and warm community. I hope you experience an array of opportunities to learn, to grow, to discover who you are and how you want to make a difference in the world. I would now like to invite our academic in charge, Dr. D.P. Jain Madam, to present the vote of thanks. आदरणीय निर्देशिका महोदय डॉक्टर प्रेमलता गुप्ता मैम, सहृदय आमंत्रित अतिथि डॉक्टर वसंत साठे सर, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी सर, डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव मैम, डॉक्टर नवीन जोशी सर, प्लेसमेंट सेल से आमंत्रित डॉक्टर राजेश शुक्ला सर, उपस्थित शिक्षक साथी एवं नव विद्यार्थी, मैं डॉक्टर दीपी जैन शैक्षणिक प्रभारी समिति की तरफ से सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत करती हूँ ISR IPS अकादमी में. आज से 2 से 3 वर्ष पश्चात आप अपने आप को संपूर्ण रूप से परिवर्तित पाएंगे और ये परिवर्तन सूक्ष्म रूप से दिन प्रतिदिन होगा और इस परिवर्तन में सहायक होंगे आपके शिक्षक, आपके साथी, ISR IPS अकादमी की प्रयोगशालाएं, यहाँ का शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन. मैं और सभी शिक्षक आपसे सिर्फ यह अपेक्षा रखते हैं कि जिस ऊर्जा से आपने ISR IPS अकादमी में प्रवेश किया है, उस ऊर्जा की उष्णता को आप अंत तक बनाए रखेंगे, क्योंकि यही उष्णता
आपके स्वरूप को प्रचंडता और तेज प्रदान करेंगे, जिस पे हम सब गौरवान्वित महसूस कर सकें। आभार प्रदर्शन की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर साठे सर की, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया और अपने व्याख्यान से सभी को प्रभावित भी किया और प्रेरित किया। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगी डॉक्टर प्रेमलता गुप्ता मैम को, जिन्होंने शैक्षणिक समिति को आज के कार्यक्रम का कार्यभार सौंपा एवं सतत निर्देशन प्रदान किया। मैं आभारी हूँ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी सर, डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव मैडम, डॉक्टर प्रदीप जोशी सर, डॉक्टर नवीन जोशी सर, मेरे साथी शिक्षकगण, सहकर्मी के एवं मैनेजमेंट के, जिनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग से आज का कार्यक्रम संचालित हो सका। ई लर्निंग समिति के स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समूह ने 2 अद्भुत प्रस्तुति प्रस्तुत करी। इस प्रस्तुति को देने के लिए उनकी मेहनत, उनका समय प्रतिबिंबित हो रहा था। मैं बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ विद्यार्थियों के समूह को, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। मैं आभारी हूँ आप सभी विद्यार्थियों के, जिनके धैर्य और अनुशासन ने आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित होने दिया। अंत में पर महत्वपूर्ण रूप से मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगी शैक्षणिक समिति के सदस्य डॉक्टर सुल्ताना रज़िया, डॉक्टर अमित सिंह ठाकुर, डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी, जिन्होंने समय की सीमाओं को लांघकर आज के कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करी। पुनः धन्यवाद आप सभी का। जय भारत। Thank you, ma'am. May God give us strength to endure our struggles and bring buoyancy, positiveness and passion in coming days. जहाँ लगे सब खत्म हो गया, जहाँ लगे सब खत्म हो गया, समझो वही तुम्हारा प्रारंभ है। डर डर के कभी हार ना जाना, डर डर के कभी हार ना जाना, क्योंकि अंत ही आरंभ है। इन्हीं कुछ शब्दों से मैं एकेडमिक कमेटी की तरफ से आज विदा लेती हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।